اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ میں 8 منٹ میں زندہ انسان کی کھال کھینچ لیتا ہوں۔ اس نے بہت سکون سے مجھے دیکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتایا۔ دوبارہ سے میری کمر کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی چلی گئی، کوشش کے باوجود میں اپنے آپ کو سکون سے نہیں رکھ پایا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دونوں کانوں کے نیچے والے پور بھی دھڑکن کے ساتھ دھک دھک کیے جا رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے انٹرنیٹ کی وہ فلم چل پڑی جسے دیکھ کر کئی دنوں تک میں بے سکون اور بے قرار رہا تھا۔ اس فلم میں افغان طالبان کے ایک رکن کو دکھایا گیا تھا جس نے اسلام کے ایک دشمن کی گردن پر تیز دھار چاقو چلا کر اس کی کھال کو چاروں طرف سے گردن کے اوپر سے الگ کر لیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں زندہ انسان کی کھال اس طرح سے کھینچ لی جیسے قصاب بکرے کی کھال کھینچ لیتا ہے۔ میں نے کسی قصاب کو بھی زندہ بکرے کی کھال کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تو زندہ انسان بغیر کھال کے لٹکا ہوا تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کرب میرے دماغ کے اندر بنے ہوئے بہت بڑے پردے پر بار بار جھماکے کے ساتھ آتا رہا۔ کئی دنوں تک میں سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ یہ شخص بھی اس طرح کا ایک آدمی تھا، ایک خودکش بمبار جو عام طور پر چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، مگر اس کی عمر زیادہ تھی۔ ہوا یہ کہ COD بلز کی جانب سے ملیر جاتے ہوئے شاہراہ فیصل کے جنکشن سے ملتے ہی سرخ بتی پر میں نے عام طریقہ کار کے خلاف گاڑی روک دی۔ ایک عام شکل و صورت کے خوبصورت سے درمیانہ قد کے آدمی نے کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ وہ صورت شکل سے شمالی صوبے سے تعلق رکھنے والا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، سفید اور کالی داڑھی کے ساتھ بظاہر وہ ایک سمجھدار آدمی لگتا تھا۔ میں نے عادت کے برخلاف سینٹرل لاک کھول کر اسے اگلی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلام علیکم کہہ کر تیزی سے نشست پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے دھیمے سے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ تم دنیا کے راستے پر جا رہے ہو، اس نے بڑے دھیمے لہجے میں پرسکون انداز میں کہا۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھاتا ہوں، تم گاڑی آہستہ چلا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھول دیے۔ یہ میری نجات کا جیکٹ ہے اور شہادت کا راستہ، تمہاری بھی شہادت کا راستہ یہی ہے۔ بہتر ہے کہ کلمہ پڑھ لو اور اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر لو، اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ گاڑی آہستہ چلاؤ، اس نے سختی سے کہا۔ پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے۔ سر سے نیچے تک میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک دوڑتی چلی گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میں نے گاڑی آہستہ کر لی اور اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کے ساتھ اس کو نظر بھر کے دیکھا۔ اس کی شکل پر بہت زیادہ اطمینان تھا۔ در حقیقت وہ دبلا پتلا آدمی تھا، مگر خودکش جیکٹ پر چادر اوڑھنے کی وجہ سے وہ تھوڑا وزنی سا لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر بھرپور نظر ڈالی۔ وہ 40 سال سے زائد عمر کا مضبوط جسم کا مالک تھا۔ چہرے پر نوکیلی داڑھی تھی جس کے زیادہ تر بال سیاہ تھے، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ چوڑی پیشانی کے نیچے 2 بڑی بڑی آنکھیں تھیں جس میں سرما لگایا گیا تھا۔ اس کا چہرہ بشاشت سے بھرپور اور جاب نظر تھا، مگر میرے اندر اس کے لیے نفرت کا جوار بھاٹا سا کھول پڑا۔ خود پر قابو پانے کی کوشش کے ساتھ میں نے تقریباً روتے ہوئے کہا کہ شہید ہونا اچھی بات ہے، اور اگر اللہ کے راستے میں جان چلی جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی؟ مگر میرے 4 بچے ہیں۔ میرے 2 جڑواں بیٹے تو بہت ہی چھوٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ان کا خیال رکھ سکے۔ یہ گاڑی وغیرہ میری ضرور ہے، لیکن میرے جیسے ڈاکٹر کے پاس بچت کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی ایک گھریلو عورت ہے۔ مجھے اپنی لرزتی ہوئی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچھا تو تم ڈاکٹر ہو؟ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچنے لگا، پھر بولا کہ جو اللہ تمہیں شہادت کے لیے چن رہا ہے، تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے کہ تمہارے بچوں اور بیوی کا خیال رکھے۔ تمہارے خیال میں وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اسے تمہارے گھر والوں کی فکر نہیں ہوگی۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ ساتھ ہی اس نے کہا کہ ایئرپورٹ کے موڑ سے گاڑی کو واپس شہر کی طرف موڑ کر آہستہ آہستہ چلاؤ، میں بتاؤں گا کہ کہاں کھڑا ہونا ہے۔ میرا گلا خشک تھا، جسم پسینے سے شرابور اور دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
इसे अपनी गाड़ी में बिठाने की संगीन हमाकत पर जैसे मेरे दिल और दिमाग से आंसू बह रहे थे। आज कल किसी को भी लिफ्ट नहीं दी जाती है, खास करना आशना लोगों को। किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे उसूल अज़बर याद मुझे, मगर मैं फिर भी उसे लिफ्ट दे बैठा। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये खुदकुश मुजाहिद किस जगह पर पहुंचना चाहता है। किसी स्कूल के सामने, किसी पुलिस स्टेशन के साथ, रेंजर और पुलिस की किसी मोबाइल के ऊपर, या फिर उसका टारगेट कोई ऐसी मार्केट थी जहां बेशुमार लोग मौत के घाट उतर जाएं और मीडिया को ज़बरदस्त प्रोपेगेंडे का मौका मिल जाए। हर सूरत में मेरी मौत यकीनी थी। ऐसी मौत का ना मैंने कभी सोचा था और ना उसकी तैयारी थी। मुझे अपने होशो-हवास बरकरार रखने में शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा था। अब तक मुल्क भर में जितने भी खुदकुश हमले हुए उनका यही अंदाज था। लड़कियों के स्कूल, पुलिस के थाने, 5 स्टार होटल, गैर मुल्की सिफारत खाने, प्रेस क्लब, फौजियों की तनसीबात, शियों, सुन्नियों और मज़ारों के मजहबी इज्तिमाआत, बाज़ार जहां ज़्यादा से ज़्यादा अमवात हो सके। मैं इन सरगर्मियों के खिलाफ था, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। सब बेबस थे और हमारी तरह सरकार भी बेबस थी। ऐसा लगता था जैसे हुक्मरानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा मुल्क दहशतगर्दी की चरागाह बनकर रह गया था। मैंने थोड़ी देर सोचकर बड़ी लजाजत के साथ कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं जो निहायत शराफत और ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूं। मैं बेशुमार लोगों का मुफ्त इलाज करता हूं। न किसी मरीज से नाजायज़ फीस वसूल करता हूं और न ही दवाएं बनाने वाली कंपनीज के खर्चे पर अय्याशी करता हूं और न ही अपने मरीजों को बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भेजकर कमीशन की खैरात वसूल करता हूं। न ही मेरा किसी लेबॉर्ट्री वाले से मुआहिदा है कि मैं अपने मरीजों को ज़रूर तुम्हारे पास ज़रूरी और गैर ज़रूरी टेस्ट करवाने के लिए भेजकर पैसे कमाऊंगा। कुछ ख़ानदानों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। मैं समझता हूं कि खुदा बेनियाज नहीं। खुदा नहीं, अल्लाह, अल्लाह कहो। उसने मुझे बोलते हुए टोक दिया। जो बेहतर। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह बेनियाज नहीं है और यकीनन उन सब के लिए और मेरे ख़ानदान के लिए कुछ न कुछ असबाब पैदा कर देगा, मगर मेरे भाई कोई भी शख्स मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं लेगा और न ही उनको मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पालेगा। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, मगर अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो, जाने दो। मेरी गाड़ी ले जाओ। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। आज के बाद अब लोगों के किसी काम आ सकूं तो वो काम भी करूंगा। अब यकीन करो मेरे बाद ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो जाएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी आवाज़ इतनी दर्द भरी हो जाएगी। वो ज़ेर लब मुस्कुराया और मेरी तरफ देखते हुए बोला कि तुम डरपोक हो। मुसलमान को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे जहां चाहे मौत दे दे। तुम्हें अपनी शहादत पर खुश होना चाहिए, ना कि इस तरह से मेरी मिन्नत और समाजत करो। मुझे गुस्सा आ गया। शायद डिप्रेशन की सूरत में गुस्सा आ जाता है। मुझे जिंदा रहने का शौक है। मुझे शहीद नहीं होना है, मुझे नहीं मरना है। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ो, और अगर नहीं छोड़ोगे तो गाड़ी को मैं दीवार पर मार दूंगा। ना जाने तुम्हारा क्या निशाना है, लेकिन दीवार से टकराने से तुम्हारा निशाना बहरहाल ज़ाय हो जाएगा। मेरे साथ तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी मौत ज़रूरी है, क्योंकि तुम मुझे दुश्मन माफिया के पहले सरगना लगते हो जो खुदकश बनकर आया है। वरना तुम लोग तो 16-17 साल के बच्चों को अपना निशाना बनाते हो, जो मासूम होते हैं, जिन्हें जिंदगी का कोई तजुर्बा नहीं होता है, जिन्हें धोखा देना नहीं आता है। तुम जैसी उम्र के लोग पहाड़ों में बैठकर बुज़दिली के साथ बच्चों को आलाकार बनाते हो, उन्हें दूसरी दुनिया में हूरों का झांसा देते हो और खुद ऐश करते हो। ये अच्छा जिहाद है तुम्हारा। मैंने गुस्से से मगर धीरे धीरे सबके दिया। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग गुस्सा नहीं करते हैं। हम लोग खामोशी से अपना काम करते हैं। हमने रूसियों को काबुल से बाहर निकाल दिया। हम अमरीका को भी अफ़गानिस्तान से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अमरीका की हिमायत करने वालों को चुन चुन कर ख़त्म कर देंगे। ये सब कुछ बहुत इत्मीनान से होगा। अगर तुमको गाड़ी किसी दीवार से टकरानी है तो ज़रूर टकरा दो। मेरा मिशन तो शहीद होना है, वो हो जाएगा। तुम हलाकत के बाद कहाँ जाओगे तुम्हें पता नहीं होगा।
दूसरी बात यह है कि शहादत बच्चे, जवान और बूढ़े की नहीं होती है। शहादत तो किसी मकसद के लिए होती है। मुझे तुमसे ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं कि मैं आज शहीद होने के लिए क्यों आया हूं। तुम दुनियादारों की समझ में नहीं आएगी। तुम लोगों ने जिस तरह ज़िल्लत की ज़िंदगियों को अपनाया है, गोरों और अल्लाह के दुश्मनों के हाथों से ज़लील हो रहे हो। तुम्हें क्या पता शहादत क्या होती है। तुम हमें माफिया कहो या शिद्दत पसंद, और हमारे बारे में मगरिब के इस घटिया प्रोपेगेंडे को फैलाओ कि हम हूरों के लिए लड़ रहे हैं और लड़कों को हूरों का झांसा दे रहे हैं। मगर सबको पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए जंग कर रहे हैं। ये भी हकीकत है कि हम यहाँ भी जीत रहे हैं और वहाँ पर भी जीत रहे हैं। हमारी शहादत के बाद अंधेरा नहीं रोशनी है, उनके लिए जो यहाँ रह जाएंगे और हमारे लिए भी जो वहाँ चले जाएंगे। मुझे कॉलेज के ज़माने के डायलॉग याद आ गए थे, मगर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इसके लहजे में सुकून था और गज़ब का एतमाद और उसके चेहरे पर कोई नफ़रत नहीं थी। दरहकीकत ये सब कुछ इसने मुस्कुराते हुए बड़े नपे तले अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कहा था। मैंने सोचा था कि ये शख्स ज़रूर किसी ख़ास मिशन पर निकला है। मुझे मौत सामने नज़र आने लगी थी। मेरे ज़हन ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि आगे टीपू सुल्तान रोड तक कोई जंक्शन नहीं है, लिहाजा गाड़ी इसी तरह से चलती रहेगी। मैंने सोचा कि मैं गाड़ी यकायक रोक दूं और बाहर निकलकर भाग जाऊं। अगर इस जिहादी ने अपने आप को ब्लास्ट कर भी लिया तो शायद मैं बच जाऊंगा। अगर उसने किसी जगह गाड़ी रुकवा कर खुद को ब्लास्ट कर लिया तो फिर शायद कुछ भी नहीं हो सकेगा। मैंने ये भी सोचा कि इस शख्स से बातचीत भी जारी रखनी चाहिए, शायद मैं इसे कायल कर सिक्कों कि वो मुझे छोड़ दे। आपका यकीन अपनी जगह पर शायद दुरुस्त हो। मैंने ये अल्फाज कहे ही थे कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। कुछ लम्हों के लिए मैंने सोचा कि जैसे ही वो फ़ोन से बात करने के लिए बटन दबाएगा बम फट जाएगा। आज कल इसी तरह से होता है। जदीद टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल नया था। जलसों में स्टेज के नीचे, किसी बाजार में किसी स्कूटर पर बम फुट कर दिया जाता है, जिसके साथ मोबाइल फ़ोन लगा होता है। जिस वक्त धमाका करना हो, फ़ोन कर दिया जाता है। शायद यहाँ भी यही हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने फ़ोन पर धीमे लहजे में मुख्तसर बात की। हम लोग अब एयरफोर्स बेस के पास पहुंच गए थे और गैर इरादी तौर पर एक्सीलेटर पर मेरा दबाव बढ़ गया और गाड़ी थोड़ी तेज़ हो गई। गाड़ी आहिस्ता चलाओ, इसने धीरे से कहा। मैंने एक्सीलेटर पर दबाव कम कर दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा कि मैं आपकी हिम्मत और बेखूफ़ी का मोतरिफ हो गया हूं, मगर एक बार कह रहा हूं कि अल्लाह के लिए मुझे गाड़ी से निकाल दें और गाड़ी जहां भी ले जानी है ले जाएं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह की राह में जो निकलते हैं वो बेखौफ हो जाते हैं। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी सुपर ताकत से नहीं। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इंसाफ और अल्लाह के रास्ते पर हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मगर अल्लाह की राह में जान देने वाले लोग मासूम औरतों और बच्चों की जानें क्यों लेते हैं? ये कोई इंसाफ नहीं है और अल्लाह का हुक्म भी नहीं है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाए। जो बेचारे कामों के सिलसिले में घर से निकलते हैं और वापस उनकी लाशें लाई जाती हैं। मैंने डरते डरते कहा, ये जंग है और जंग में यही होता है। जब वो हमला करते हैं ज़मीन पर हथियारों से और जब बम बरसाते हैं हम लोगों पर तो वो सिर्फ निशाना देखते हैं, इन मासूमों को नहीं देखते जिनकी जान चली जाती है। इसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों वाज़े था। मगर वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अब अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। अब में और उन लोगों की जंग में फ़र्क होना चाहिए। वो बातिल हैं और अब हक हैं, वो झूठे हैं अब सच हैं। उनका मतए नज़र दुनिया है, अब की मंजिल दीन। फिर ये कि वो अपने लोगों को नहीं मारते हैं, उनका निशाना भी मुसलमान बन रहे हैं और अब का निशाना भी मुसलमान बन जाते हैं। दोनों में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। मैंने बहुत एहतियात से इन जुमलों की अदायगी की। गाड़ी कारसाज के मोड़ से आगे गुजर चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह शख्स क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। जंग सिर्फ जंग होती है और जंग के अपने उसूल होते हैं और दोनों जानिब से जंग में यही हो रहा है और होता रहेगा। ये भी हमने अमरीकियों से सीखा है और इस वक्त सीखा है जब रूस के खिलाफ जंग में वो हमारे साथ थे। मैं 8 मिनट में इंसान की खाल खींच लेता हूँ।
इंसान जिंदा रहता है मगर उसकी खाल बाहर आ जाती है। वो मुझे हमारे अमरीकी दोस्त ने सिखाया था। हम लोगों की तरबियत की थी। सब उसे डायमंड कहते थे, ब्रादर डायमंड। न जाने इसका असली नाम क्या था। वो अपने काम में माहिर था। हम लोग रूसी सिपाहियों, अफगानिस्तान में मौजूद रूसी शहरियों और उनके जासूसों को अगवा करते, फिर उन्हें लटका कर उनकी खाल खींच लेते थे और बगैर खाल के जिंदा आदमी को काबुल की सड़कों पर फेंक देते थे। ये एक गैर इंसानी फेल है मगर उसका मकसद दुश्मन को खौफजदा करना है। इसी तरह से जिस शहर, महल्ला और गांव के लोग हमारे खिलाफ होते हैं, हम वहां के मशहूर लोगों को पकड़कर इनकी गर्दनें काट कर उनके जिस्म और गर्दन को शहर के चौक में लटका देते। इसके बाद लोग खामोशी से हमारे सामने सर झुका देते, वही करते जो हम चाहते थे। ये मौजूदा ज़माने की जंगी हिकमत अमली है। ये नया अंदाज है जंग करने का, नया तरीका है दुश्मनों से निपटने का। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ, कुछ सोचता रहा, फिर बोला, एक दिन 5 रूसी फौजी और उनके खानदान के 2 शहरी पकड़े गए और मुझसे कहा गया था कि इनमें से एक की खाल खींचनी है। यही मेरा इम्तिहान था। उनके हाथ पीर बांध कर खड़ा किया गया। फिर इनमें एक को मैंने अपनी मर्जी से चना और फिर उनके सामने इस जिंदा आदमी को लटका दिया और उसकी गर्दन के नीचे से इसके खाल खींच दी मैंने। जैसे कस्साब बकरे की खाल खींचता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बकरा मरा होता है मगर ये जिंदा थे। 10-12 मिनट लगे होगे मुझे, उनकी शक्ल देखने लायक थी। एक तो फौरन मर गया। बकिया लाशें हमने रोज़ पहुंचा दी थीं। यही तरीका था दुश्मनों में दहशत फैलाने का, और इसी तरीके से रूसी भागे थे अफ़गानिस्तान से। यहाँ भी यही करेंगे हम लोग। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने मासूम मरते हैं और कितने मुजरिम। मकसद तो अमरीकियों और उनके पिट्ठुओं को निकालना है। मेरे दिल में शदीद नफ़रत का जवार भाटा सा फटा और सारे जिस्म पर रशा सा तारी हो गया। जंगल में भी ये सोच नहीं होती है। जानवर जानवर के साथ ये नहीं करता है जो इंसान इंसान के साथ करता है। यही कुछ इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के साथ किया। रातों को गोलियां चलाकर मासूम बच्चों और औरतों की जानें ली। ज़बरदस्ती ज़मीन खाली कराकर अपने घर बसा लिए। खान यूनुस की दास्तान पुरानी नहीं है। इस रात 69 फ़लस्तीनों को उनके गांव में घुसकर कत्ल किया गया। ये सहयूनियों का टोला था जिसने ना बच्चे छोड़े, ना औरतें, ना बूढ़ों को बख्शा और ना जवानों को जिंदा रहने दिया। इसराइल की ममलूक बनाने के लिए न जाने ऐसे कितने गांव देहात ताराज कर दिए गए, उन्हें बेदखल किया गया, लाशों के ढेर बनाए गए और सीनी काग की इमारतें खड़ी की गईं। यही कुछ अमरीकियों ने वियतनाम और कंबोडिया में किया था। और अफ़गानिस्तान की जंग में मुजाहिदों को यही सिखाया था कि किस तरह रूसियों को खौफज़दा करना है। और अब उनके सिखाए हुए मुजाहिदीन हमारे लोगों के साथ यही कर रहे हैं। शहरियों में बम फोड़ रहे हैं, सर तन से जुदा करते लाशें लटका रहे हैं। तुम लोगों को अपने किए की सज़ा मिल रही है। मेरे जहन में ख़यालात के तूफ़ान आ रहे थे। हम लोग शाहरा कायदीन के मोड़ से आगे बढ़ गए थे। मुझे ख़याल आया कि कहीं वो कॉन्टिनेंटल होटल गवर्नर हाउस वज़ीर आज़म हाउस पर जाकर तो नहीं फटना चाहता। एक बार फिर खौफ ने मेरे पूरे जिस्म का मुहासरा किया। आयशा बावानी स्कूल के आगे जिना अस्पताल के मोड़ से इसने गाड़ी वापस शाहरा फैसल पर मोड़ने को कहा। दम भर के लिए मेरे जहन में आया कि गाड़ी मोड़ते वक्त चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दूं। गाड़ी जिस तरफ जाती है चली जाए, इस तरह से मेरी जान बच जाएगी। मैंने ये सोचते हुए गाड़ी को आहिस्ता किया। इतनी देर में उसके फ़ोन की घंटी दोबारा बज पड़ी। फ़ोन पर उसने मुश्किल से 2 मिनट बात की। इस दौरान मैं गाड़ी मोड़कर दोबारा एयरपोर्ट की तरफ सफ़र शुरू कर चुका था। उसने भरपूर नज़र मुझ पर डाली और धीरे से कहा, तुम शहीद होने को तैयार होना, कलिमा पढ़ने का वक्त आ गया है और एक दिन हम सब को इसी तरफ वापस जाना है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो शहादत के मर्तबे पर फाइज होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने वादे किए हैं और अल्लाह ताला के वादे झूठे नहीं होते हैं। इसकी आवाज़ में गज़ब का सुकून और एतमाद था। नहीं, मैं मरने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं मरना है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। एक ऐसी बेकार की जंग में जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जो कोई भी नहीं जीतेगा। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चों पर रहम करो। मुझे इस तरह याद है कि ये सब कुछ मैंने रोते हुए बेइख्तियार चीख चीख कर कहा था। बड़े बुज़दिल हो तुम।
तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही आज दुनिया में मुसलमानों का कोई मकाम नहीं है। तुम्हारा तो दीन में भी कोई मकाम नहीं है। तुम उन बच्चों की फिक्र कर रहे हो जो तुम्हें अल्लाह ने दिए हैं। तुम्हें ये भरोसा नहीं है कि ऊपर वाला ही उनका ख्याल भी रखेगा। तुम्हारे जैसे ही मुसलमान हैं जिन्होंने जिहाद का, दीन का, रसूल का, अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें चुना है। अभी फ़ोन पर मुझे खबर मिली है चीफ मिनिस्टर एयरपोर्ट से निकलने वाला है। जैसे ही वो सड़क के दूसरी तरफ पहुंचेगा मैं अपने को, तुम और तुम्हारी गाड़ी समेत तबाह कर दूंगा। वो अमरीका का यार जहन्नम पहुंचेगा। तुम और मैं जन्नत में पहुंच जाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर बेइंतहा सुकून था और आंखों में इत्मीनान। इसकी शक्ल देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये शख्स जिंदा इंसानों की खाल खींच लेता है और हम मलबे में जिंदा दफन हो सकते हैं। ये सारे ख़यालात मेरे जहन में एक तेज़ रेल गाड़ी की तरह से छक छक करते चले गए। मेरी आंखों के सामने मेरी बेवा बीवी का आंसुओं भरा चेहरा आ गया। मेरे बच्चे आ गए। नन्हे नन्हे यतीम बेयार मददगार न जाने कैसी गुजरेगी। मेरे दिल में आया कि मैं गाड़ी दीवार से टकरा दूं, आरोक कर गाड़ी से उतर भाग जाऊं। मैं सोच ही रहा था कि फिर इसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने इस्लाम अलैकुम कहकर फ़ोन अपने कानों से लगा लिया। मैंने कुन आंखों से इसे देखा। वो सामने देख रहा था। मुझे पहली दफ़ा ऐसा लगा जैसे इसके चेहरे पर मायूसी है। उसने फ़ोन बंद किया और बग़ैर कुछ बोले सामने गौर से देखने लगा। गाड़ी थाखान का बरेज पार करके नीचे आ रही थी। सामने बस स्टॉप पर 5-6 छोटी बसें खड़ी हुई थीं जिनमें मुसाफिर चढ़ रहे थे। इसने यकायक कहा कि बस स्टॉप पर गाड़ी रोक दो। मुझे पता था कि मेरी हलाकत का वक्त आ गया है। फिर गाड़ी का दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ। मैंने फौरन आंखें खोल दी। देखा वो तेज़ी से दौड़ता हुआ लांढी जाने वाली बस में सवार हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपने आप पर काबू पाने में कई मिनट लगे। इसके बाद मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। Like, comment, share, press the bell icon